I welcome my viewers to my platform ePolitical Science. Today we are going to discuss on the paper India's foreign policy in a globalizing world. वैश्वीकृत विश्व में भारत की विदेश नीति। इस पेपर में जो आज मेन सब टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी टू एन एक्सटेंट, objectives and principles, what are the global issues and challenges. These are the three things which we are going to discuss on today's discussion. So India's foreign policy, as far as all of us are aware that India's foreign policy has undergone a significant transformation since its independence in 1947. It has evolved from a policy of non-alignment to a more proactive and assertive approach. 1947 में अपनी स्वतंत्रता के बाद से भारत की विदेश नीति में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। यह गुटनिरपेक्षता की नीति से अधिक सक्रिय और मुखर दृष्टिकोण के रूप में विकसित हुई है। India's foreign policy is shaped by its historical, cultural, and strategic interests. It aims to navigate complex global relations while promoting national security, economic growth, and regional stability. Understanding its objectives and aims is crucial for comprehending India's role on the world stage. भारत की विदेश नीति उसके ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक हितों से आकार लेती है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास और क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देते हुए जटिल वैश्विक संबंधों को आगे बढ़ाना है। विश्व मंच पर भारत की भूमिका को समझने के लिए इसके उद्देश्यों को समझना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। Now let us try to understand the historical context and how it has evolved. Now, India's foreign policy is deeply rooted in its historical experiences. The legacy of colonialism and the non-alignment movement have significantly influenced its diplomatic strategies. This historical context helps to explain India's current strategic partnerships and its approach to global governance. Now, there are 4 pointers which I have made in this slide, so I'm going to try to explain it, how we can categorize the historical perspective or the historical context of India's foreign policy evolution. Now when we talk about the early years, the formative years, now India's early foreign policy was influenced by its colonial past and its desire to forge its own independent path in the world. Secondly, non-alignment movement. India played a pivotal role in the non-alignment movement, advocating for peace, neutrality, and cooperation among developing nations. Then the third one is economic liberalization, how it has evolved. Now, in the 1990s, India's economic liberalization led to a more open and outward-looking foreign policy, emphasizing trade and economic partnerships. Now, when we look in the 21st century, India's foreign policy in the 21st century is characterized by greater focus on its security, strategic partnerships, and global leadership. ऐतिहासिक संदर्भ में अगर हम देखें तो किस तरह से हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसका विकास हुआ है, इसको समझने की बहुत ज़रूरत है। तो अगर हम देखें तो भारत की विदेश नीति में उसके ऐतिहासिक अनुभव ने बहुत गहराई से अपना छाप छोड़ा है। उपनिवेशवाद की जो विरासत रही है और गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने इसकी कूटनीतिक रणनीतियों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है। यह ऐतिहासिक संदर्भ भारत की वर्तमान रणनीतिक साझेदारी और वैश्विक शासन के प्रति इसके दृष्टिकोण को समझने में हमें मदद करती हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया, अगर हम पुराने समय में देखें, अर्ली ईयर्स में देखें, तो भारत की प्रारंभिक विदेश नीति
उसके औपनिवेशिक अतीत और दुनिया में अपना स्वतंत्र रास्ता बनाने की इच्छा से प्रभावित थी कि किस तरह से हम अपने स्वतंत्र, अपने लोकतांत्रिक परिवेश के अंदर हम किस तरह से एक अपना जो है विदेश नीति बना सके, जिसमें हम बाकी जो कंट्रीज़ हैं, जिसे हम कहते हैं जो ग्लोबल साउथ है, उसको साथ लेके चलें और एक अलग तरीके से हम कहीं ना कहीं उनके वॉइस को लेके चलें, और जो लोग भी अपनी बातें नहीं रख सकते, जो कंट्रीज़, हम उनको कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करें। तो बहुत पुराने समय से ही ग्लोबल लीडर जो है बनने की उत्सुकता, ग्लोबल लीडर बनने के जो आधार है, जो बेस है, वो इंडिया के फॉरेन पॉलिसी में हमें पहले से ही मिलती है। और कहीं ना कहीं जब हम ये बात कहते हैं कि नॉन अलाइनमेंट बहुत हद तक इंडिया के फॉरेन पॉलिसी का पार्ट रहा और इंस्पायर किया, और इसके बहुत सारे डिबेट्स और क्रिटिकल पर्सपेक्टिव भी रहे, पर बहुत हद तक ये पॉजिटिव जो है कनोटेशन को लेके आता है कि किस तरह से हमने किसी भी आइडियोलॉजी से अपने आप को जो है कनेक्ट करना, बिल्कुल एकदम परफेक्ट तरीके से कनेक्ट करना सही नहीं समझा, और हमने एक बैलेंस्ड अप्रोच अपनाया। ठीक है, तो अब जैसे हम दूसरा पॉइंट देखते हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या है और गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्यों किया, भारत ने क्यों इस आंदोलन का समर्थन किया, और गुटनिरपेक्षता से अपना जो हम कह सकते हैं सामंजस्य भारत ने बनाया। तो ये बहुत पहले ही मैंने समझाया हुआ था, क्लास में बताया है ये। तो विकासशील देशों में जो भारत भी एक विकासशील देश रहा है और अब विकसित भारत 2047 बनने की प्रक्रिया में है। तो ये जो आधार है विकासशील देशों को साथ लेके चलने का, तो ये कहीं ना कहीं गुटनिरपेक्ष आंदोलन को प्रभावित करता है। आर्थिक उदारीकरण के बाद किस तरह से व्यापार ओपन हुए, इकोनॉमी ओपन हुई, एक दूरदर्शिता लेके चला गया, नव उदारवादी विचारधारा कहीं ना कहीं आई, और क्योंकि पूरा विश्व जो है ओपन हो रहा था, तो उसमें भारत के लिए भी बहुत ज़रूरी था कि वो इस आर्थिक उदारीकरण का समर्थन करें। अब 21वीं शताब्दी की हम बात करेंगे तो भारत की विदेश नीति की जो विशेषता है वो बेसिकली नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्र सुरक्षा, राष्ट्रहित जिसे हम कहते हैं, जो सर्वोपरि है, उस राष्ट्रहित की बात करता है और राष्ट्रीयता की बात करता है। और राष्ट्रीयता की बात करने के साथ साथ कहीं ना कहीं एक स्ट्रैटेजिक जो है अप्रोच लेके भारत चलता है आ रहा है। और आज भी जो करंट सिचुएशन में हम देखते हैं जो पॉलिसी रही है, वो एक बहुत ही जो है स्ट्रैटेजिकली सोची समझी पॉलिसी रही है, क्योंकि दूरदर्शी पॉलिसी रही है, ताकि हम आगे भी फ्यूचर में कैसे अपने आप को डेवलप कर सकें। तो इसीलिए क्योंकि वैश्विक स्तर पर एक वैश्विक नेतृत्व और वैश्विक नेतृत्व का आधार तय करने के लिए भारत हमेशा कोशिश करता रहा है। Now when we try to understand locate the principles and objectives, the most of the time these principles and objectives they sound same, बट कई बार क्या होता है कि जो हम जो प्रिंसिपल्स, हमारी जो फिलॉसफी है, जिसके आधार पर हम चल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारा गोल भी बन जाता है, जिसे हम कहते हैं मीन्स है और हमारा एंड है। तो बेसिकली किन प्रिंसिपल्स को अपना के भारत ने आगे अपने जो ऑब्जेक्टिव्स तय किए। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी इंक्लूड ensuring national security, as we discussed, promoting economic development and enhancing global cooperation. India strives to establish itself as a key player in international affairs, focusing on multilateralism. This is a very important point here, and building alliances with other nations. Now what is multilateralism? Why India believes in the idea of multilateralism? Whether multilateralism is you can say relevant to this context or not? How far we have moved from bilateralism to unilateralism to multilateralism, and this whole journey, how it has evolved and how relevant it is. तो ये सारे डिबेट्स जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, हमारे क्लास में भी इसको कई बार डिस्कस किया है। यहाँ पे हम बेसिक पॉइंट्स डिस्कस करेंगे कि क्या क्या प्रिंसिपल्स रहे हैं इंडिया के फॉरेन पॉलिसी के,
अब पुराने समय से लेकर के अब तक का जो है सफ़र जो तय हुआ है, क्या नई चीज़ों पे हम फोकस कर रहे हैं और क्या चीज़ें पहले से रही हैं। ये बात मैंने पहले भी बताया कितनी बार किस पे क्वेश्चन आता है कि क्या कंटिन्यूटी रहा है हमारी फॉरेन पॉलिसी का, क्या बदलाव रहा है। मतलब जो बदलाव है वो तो हो ही रहे, निरंतर हो रहे हैं। और बदलाव में वी हैव टू कीप इन माइंड दैट whatever the we can say updated data we are writing, we are supposed to write from a good newspaper. We can cover the analytical part, the data, or you can say the critical part, the understanding we can develop from the newspaper. So I always suggest my students to go through a daily newspaper, a good newspaper which has a critical approach in that, without any biasness. So that particular thing is very important to you can say find out. So you have to find out if you are having Hindi medium, तो हिंदी मीडियम में भी बहुत अच्छी न्यूज़पेपर्स हैं, और वो न्यूज़पेपर्स के आप हर टॉपिक्स पे जो फॉरेन पॉलिसी और नेशनल रिलेशंस पे हैं उसका एक मतलब आप फोल्डर बना के, और जो है आप करंट जो है जो भी आर्टिकल है उसको आप अपने फोल्डर्स में उसको कहीं ना कहीं जो है उसका एक वो बना सकते हैं। अब दूसरी बात ये है कि हमारे पास बार बार ये आता है कि न्यूज़पेपर्स में तो हर दिन आर्टिकल आ रहे हैं, तो क्या हम हर आर्टिकल्स को, हर जो अंडरस्टैंडिंग है उसको हम समझें, पढ़ें और लिखें, तो बहुत कई बार नहीं भी संभव हो पाता है, और एक आंसर में हम इतनी सारी चीज़ों को नहीं लिख सकते। तो मेरा बस कहना इस चीज़ के लिए ये है कि जो भी हमारा सिलेबस है इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी का उसे हम देखें, और जो करंट डायनेमिक्स है, जो आज के करंट इश्यूज़ हैं उस पर जो भी अंडरस्टैंडिंग या क्रिटिकल पर्सपेक्टिव आ रखा है, और जो इजी लैंग्वेज में समझने में है, जो आप रिलेट कर सकते हैं, और पॉइंटर्स के आधार पर हम उसको करें। तो इसलिए ये हमारा खुद का जुडिशियस डिसीजन है कि हम किस तरह से जो है अपने जो मटेरियल्स हम अपना फोल्डर बना रहे हैं और कलेक्ट कर रहे हैं मटेरियल्स को, तो उसमें कौन सा जो है एडिटोरियल या कौन सा पार्ट, कौन सी कटिंग जो हमारी बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है, और कित पॉइंटर्स हमें बनाना है, तो वो आपके ऊपर है। आपने क्वेश्चन की तैयारी कैसे की है, कितने सारे आपने नोट्स बना रखे हैं। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स, यू डोंट हैव टू मतलब बॉदर अबाउट ईच एंड एवरी आर्टिकल, बट द मोस्ट रेलिवेंट आर्टिकल, मोस्ट simpler article to follow, to articulate, I think that is more important. So जैसा कि हम देख रहे हैं कि प्रिंसिपल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, पीसफुल को एग्जिस्टेंस, जियो और जीनो दो, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहा है शुरू से। इंटरनेशनल कोऑपरेशन तो एक it is a, we can say it is a reality in today's context also, as we are moving to a more interdependent world. So international cooperation is required. Now national interest, I told you, मॉर्गन थॉ के भी मैंने बता दिया, जैसे रियलिज्म की बात करते हैं, नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो क्यों इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि नेशन जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नेशन की जो हित है उसको अगर हम प्रोटेक्ट करेंगे तभी हमारा हित भी प्रोटेक्ट होगा, क्योंकि हम पूरा का पूरा एक ग्रुप है, एक समूह है, एक आइडेंटिटी है। और नेशन जो है और नेशनलिज़म जो है वो हमारी खुद की, जो हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं आइडेंटिटी है, तो उसके साथ हमें कनेक्ट करना है। देन हम बात करते हैं ग्लोबल लीडरशिप की। ग्लोबल लीडरशिप मैंने पहले बताया है कि ग्लोबल लीडरशिप कितना इम्पॉर्टेंट है इंडिया के लिए। क्यों ग्लोबल लीडरशिप इंडिया के लिए इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ग्लोबल लीडरशिप कहीं ना कहीं इंडिया को जो है एक प्लेटफॉर्म देता है जहाँ पे वो अपने जो उसके ऑब्जेक्टिव हैं, उसके अपने जो गोल हैं उसको दुनिया के सामने लेके आए। और जो लोग, जो मतलब जो ग्रुप्स हैं, जो कंट्रीज़ हैं जिनके पास अभी भी बहुत स्पेस नहीं है, डेमोक्रेटिक स्पेस नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, उनको गाइड कर सकें, उनको मेंटोर कर सकें, उनको इन्फ्लुएंस कर सकें कहीं ना कहीं, और एक प्लेटफॉर्म दे जहाँ पे बाकी लोग भी अपने जो है वॉइस को रख सके। तो ग्लोबल लीडरशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीस एंड डिज़ार्ममेंट, as we all know that disarmament is very important, because if when nations struggle for keeping more and more weapons, then there can hardly be any peace in the world. International peace and security is very important. So it is important that we stick to the idea of world peace and disarmament. So then the next idea is about multilateralism. So I told you India believes in multilateralism and plays an active role in international organizations such as the United Nations, or you can say BRICS, Quad nations, SAARC, ASEAN,
और बिम्स्टेक, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसको आगे भी मैंने डिस्कस करा है, तो वो आप इसमें लिख सकते हैं। तो सिद्धांत और उद्देश्य के अंदर शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भावना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना, राष्ट्रहित की भावना, वैश्विक नेतृत्व की भावना, विश्व शांति और निरस्त्रीकरण की भावना और बहुपक्षवाद, ये सारे बहुत इम्पोर्टेंट है जो कहीं ना कहीं भारत के सिद्धांत और उद्देश्य को कोरिलेट करते हैं, और ये बहुत हमारी फॉरेन पॉलिसी को एक बहुत बड़ा बेस, एक आधार देते हैं, क्योंकि अगर ये आधार नहीं होंगे तो आगे हमारी फॉरेन पॉलिसी, हमारी जो नीतियां हैं, जो कहीं ना कहीं हमें एक बहुत बड़ी पहचान देती है विश्व मंच पर, वो मिसिंग रहेगा। तो नाउ वी मूव टू द तो व्हाट डू वी मीन बाय मल्टीलैटरलिज्म। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मल्टीलैटरलिज्म, सो मैं वहाँ से रिलेट कर रही हूँ कि कई बार मल्टीलैटरलिज्म में, जैसे मैंने अभी बताया कि वर्ल्ड का जो पूरा का पूरा हम कह सकते हैं आधार रहा है, वो कैसे बायलैटरलिज्म से यूनिलैटरलिज्म और मल्टीलैटरलिज्म की तरफ मूव किया है, और वो मूव बहुत ग्रेजुअल रहा है, एकदम से फास्ट नहीं रहा है, ग्रेजुअल रहा है। और मल्टीलैटरल इंगेजमेंट से हमें क्या मतलब है? सो वी मीन दैट इंडिया इज़ हैविंग रिलेशनशिप यूनाइटेड नेशंस, G20. India is part. Recently, India had its presidency of G20. Then BRICS, other multilateral organizations also. India is playing a crucial role. For example, WTO, International Monetary Fund, World Bank. Then the regional focus, the regional cooperation vis-a-vis the globe, we can say South-South cooperation. We must have heard about the G77, G70, यूनाइटेड नेशंस, बहुत सारे हमने पुराने जो जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस पढ़े हमने, अब हमें नए ऑर्गेनाइजेशंस जो बन रहे हैं और जो बने हैं उनके बारे में भी मेंशन करना है। सो इंडिया प्रायोरिटाइजेस इट्स नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी हमेशा रहा है इसमें। तो इन फॉरेन रिलेशन स्ट्रेंथनिंग इट्स शार्क एंड बायलैटरल टाइज with neighboring countries. Strengthening these relationships is vital for ensuring stability, and there are two things, one is stability and then the other is security. तो स्थायित्व और सुरक्षा in South Asia as well as for addressing cross border challenges. So we will also come across what are the challenges, what are the current issues, or what were the earlier issues, और बहुत सारे जो पुराने issues थे वो अभी आज भी कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं, कुछ नए इश्यूज़ भी ऐड हुए हैं, तो हम किस तरह से उनको हम एड्रेस करते हैं, क्या समाधान हमने अब तक ढूंढा है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो बहुपक्षीय जुड़ाव या बहुपक्षवाद की जो बात करते हैं, तो उसमें एक तो ये आइडियोलॉजिकली भी हमें समझना पड़ेगा कि किस तरह से जो है एक ग्लोबल साउथ को एक बहुत बड़ा नया स्पेस देता है, और उसके साथ साथ बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे यूनाइटेड नेशंस, G20, BRICS, then there are other organizations, IMF, World Bank, WTO, then the regional organizations, किस तरह से ये लोग काम कर रहे हैं, ये सारा बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब जब हम बात करते हैं मल्टीलैटरलिज्म की, बहुपक्षवाद, तो उसमें कहीं ना कहीं बहुपक्षवाद जब हम बात करेंगे तो उसमें बायलैटरल रिलेशनशिप भी आएगा, ठीक है। हाँ, बायलैटरल रिलेशनशिप्स, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज़ के साथ बायलैटरल रिलेशनशिप्स होगा, तो इसमें हम सिर्फ कुछ कंट्रीज़ के साथ हम रिलेशनशिप्स नहीं करके बायलैटरल रिलेशनशिप्स हमारे मोस्टली बहुत सारे कंट्रीज़ के साथ हमारे, फॉर एग्जांपल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स है। इंडिया हैज़ फॉर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स विद कंट्रीज़ लाइक द यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड फ्रांस टू एनहांस सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट। नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ इंडिया प्रायोरिटाइजेज रिलेशंस विद इट्स नेबरिंग कंट्रीज़, फॉर एग्जांपल बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका एंड पाकिस्तान। In the global south, how it is trying to strengthen and foster its relationship in the global south, promoting economic development. Okay, सो ये जो द्विपक्षीय संबंध है, हम कई बार कहते हैं बहुपक्षवाद द्विपक्षीय संबंधों से ही संभव हो जाता है। जब द्विपक्षीय संबंध स्थापित करते हैं बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ, तो वो कहीं ना कहीं मल्टीलैटरलिज्म को लीड करता है। तो मल्टीलैटरलिज्म के लिए द्विपक्षीय संबंध, द्विपक्षीय आधार, जैसे रणनीतिक साझेदारी, जैसे मैंने भी बात की थी कि स्ट्रैटेजिक हम कैसे कोऑपरेशन की बात करते हैं कंट्रीज़ के साथ, पड़ोसी देश के साथ, जो हमारे पॉलिसी है, जो हमारा एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है, जो हम फ्यूचर प्लानिंग को लेके चल रहे हैं, वैश्विक दुनिया में हमारा क्या आधार है, किस तरह से हम वैश्विक दुनिया में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, ये सारा बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ मैंने बताया कि रीजनल कोऑपरेशन,
क्योंकि जब भी हम मल्टीलैटरलिज्म की बात करते हैं और हम बहुपक्षीय वार्तालाप की बात करते हैं तो उसमें डिसेंट्रलाइजेशन का बहुत बड़ा रोल है। उसमें हम कह सकते हैं कि पावर का डिसेमिनेट करने का बहुत बड़ा रोल है। तो पावर तभी डिसेमिनेट होगा जब हम सब क्षेत्रों को मौका देंगे आगे आने का, रीजनल कोऑपरेशन फोर्ज करेंगे। तो मैंने बताया था जैसे सार्क का, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इट्स अ वेरी ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन, आई थिंक 1985 और 87 इट वाज फॉर्म। सो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स साउथ एशिया में किस तरह से सिक्योरिटी, सुरक्षा, शांति बना के रखें रीजनल कोऑपरेशन के थ्रू। हालांकि बहुत ज़्यादा ये जो है सफल नहीं हो पाया क्योंकि पाकिस्तान जैसे जो कंट्री हैं उन्होंने बहुत जितने भी इसके समिट हुए हैं उसमें कई बार को मोस्टली मतलब ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान हैज़ refused to participate, or there has been some issues, some differences between India and Pakistan, so it refused to participate. So और उसके बाद भी जो कुछ एक आधा और कंट्रीज़ ने भी इसको बहुत सीरियसली नहीं लिया क्योंकि डोमेस्टिक इश्यूज इतने ज़्यादा कहीं ना कहीं हावी होने लग गए कि सार्क का बहुत ज़्यादा रेलिवेंट नहीं माना गया। हालांकि रेलिवेंट रहा है ये सार्क, तो अब जैसे थोड़ा सा ही बोला जाता है कि सार्क क्योंकि इसीलिए बहुत सफल नहीं हो पाया क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो हम कह सकते पॉजिटिव डायलॉग है वो कभी जो है बन नहीं पाए। बिम्स्टेक जैसे बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसका बहुत बड़ा नाम है। ये भी एक रीजनल ग्रुपिंग है जो ट्रेड के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए हेल्प करते हैं। और फिर इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन IORA is a regional forum that promotes cooperation on issues of mutual interest including maritime security, ट्रेड एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हम बेसिकली पर्यावरणीय जो संदर्भ है उसको भी देख सकते हैं। तो क्षेत्रीय सहयोग में क्यों क्षेत्रीय सहयोग में ज़रूरी है क्योंकि दक्षिणी देश अगर आपस में ही जो है तालमेल नहीं बिठाएंगे और अगर वार्तालाप नहीं करेंगे और अपने जो क्षेत्र है उसको कहीं ना कहीं समर्थन नहीं करेंगे तो हम इस तरह के जो बहुत ज़्यादा जो है वर्ल्ड पीस का हम नहीं लेके आ सकते। तो वर्ल्ड पीस और कोऑपरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि क्षेत्रीय सहयोग बना रहे। अब जैसा कि मैंने बताया था शुरू में जब मैंने स्टार्ट किया था कि पूरा का पूरा हमारा जो इंडिया का फॉरेन पॉलिसी है ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारे मुद्दों और चैलेंजेस से जूझ रहा है। तो क्या ग्लोबल इश्यूज़ हैं एंड चैलेंजेस हैं? तो पहला आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे क्लाइमेट चेंज। इंडिया इज़ एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन ग्लोबल एफर्ट्स टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज एंड प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एज फार एज टेररिज्म इज़ कंसर्न, India works with international partners to combat terrorism and strengthen counter-terrorism measures. Then cyber security, terrorism से ही cyber security भी कहीं ना कहीं connected है। India is increasingly focusing on cyber security and is taking steps to protect its critical infrastructure and citizens from cyber threats. Now, nuclear non-proliferation. India supports the goal of nuclear non-proliferation and advocates for a global nuclear weapon free world, से हम कहते हैं total disarmament. और global challenges में India's foreign policy also addresses pressing global challenges, for example terrorism, trade disputes, poverty, malnutrition. Then you have the problem of migration, female issues, gender discrimination. There are many other issues which India is facing and how we are going to you can say tackle these challenges with a solution, with a you can say multi-dimensional solution where multiple stakeholders are involved। क्योंकि कुछ जो है मतलब हम कह सकते हैं कुछ संदर्भों में अगर हम कोशिश करेंगे इसको समाधान निकालने का तो शायद ही संभव नहीं हो पाएगा। तो हमें इसे बहुस्तरीय जो है लेवल पे इस जो पूरे विश्व के जो समस्याएं हैं उनको देखने की कोशिश करनी चाहिए। तो वैश्विक मुद्दे और चुनौतियों में जलवायु परिवर्तन, आतंकवादी जो है, उसके बाद गतिविधियां, साइबर सुरक्षा, परमाणु प्रचार प्रसार, वैश्विक चुनौतियां, तो ये सारी चीज़ें हैं। और हम बाद में जब हम कंक्लूजन की तरफ जाते हैं पूरा का पूरा तो हम ये कह सकते हैं कि इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी इज़ अ डायनेमिक blend of historical influences and modern challenges. By pursuing its objectives, India aims to enhance its global standing and contribute positively to international stability. Understanding these aims is essential for grasping India's role in a rapidly changing world. Now, what are the important things? Strategic partnerships, regional cooperation, global leadership, economic development. तो निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि भारत की विदेश नीति
ऐतिहासिक प्रभावों और आधुनिक चुनौतियों का एक गतिशील मिश्रण है। अपने उद्देश्यों को आगे बढ़ाते हुए भारत का लक्ष्य अपनी वैश्विक स्थिति को बढ़ाना और अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता में सकारात्मक योगदान देना है। इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, जैसे रणनीतिक साझेदारी हो गया, क्षेत्रीय सहयोग, वैश्विक नेतृत्व, आर्थिक विकास। तो इन सब जो है संदर्भों में हम समझ सकते हैं कि पूरा का पूरा इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी इन अ ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड एक बहुत ही बड़ा पेपर है, जिसकी शुरुआत मैंने आज इसलिए की है, एक ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स, प्रिंसिपल्स, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट और थोड़ा चैलेंजेस। नेक्स्ट वीडियो में आई विल बी टॉकिंग अबाउट द इंस्टीट्यूशंस व्हिच आर there behind the making of India's foreign policy, and there are then the major partners, the global powers, उनके साथ कैसे इंडिया का रिलेशंस है, रीजनल पावर्स के साथ क्या रिलेशनशिप है इंडिया का, और फिर जितने भी ग्रुपिंग्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस, मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस, उसके बारे में हमें समझना पढ़ना पड़ेगा, उनमें रेलिवेंट कौन सा है। और बाकी जो भी करंट चैलेंजेस है, जैसे जिसमें से क्लाइमेट चेंज इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वी कैन से चैलेंज टू इंडियाज़ ग्लोबल कह सकते हैं डेवलपमेंट, तो उसमें हम कैसे उसको देखते हैं। तो इसके लिए मैंने पहले ही बताया कि न्यूज़पेपर रीडिंग डेली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड गेटिंग कनेक्टेड विद द न्यूज़, द करंट न्यूज़, फॉर एग्जांपल द क्राइसिस इन बांग्लादेश which is happening. So how we are going to have a, you can say, a holistic approach towards a particular issue, not from one single lens but multiple lens. So that is very important. So my students, if you have any doubt, any queries, any questions, please put your comments in the description box. I'll come back to you and obviously respond to your comments. And please do subscribe my channel Epolitical Science and motivate me by liking and sharing the video. Hope you like it. Have a nice day. God bless you. Thank you.